Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों newspaper से जो important news है वो discuss करेंगे. So let's get started with the topic first. So today is 17th of July and these are the topic that I'll be discussing. First is Chabahar Jahedan Rail Project. The second is border disengagement process. The third topic is counterproductive lockdown. And the fourth topic is decline in the maternal mortality ratio. And the last topic is loopholes in the working of Indian universities, right? So these are the five important topic for the day that I'll be discussing. And apart from this, we'll have some MCQs question and explanation for yesterday question at the end of this video. So video के अंत तक बने रहें ताकि आपको correct explanation भी पता चल पाए. And before I proceed, I would like to tell you that we have started completely free of cost CSE Prelims Current Affair Revision module. So this is just for you. This is completely free of cost and the entire courses would be handled by the eminent faculty of our Apti Plus Academy. So basically what you can do, you can check the link of the description. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं. And there is no cost for this fee. You can make any voluntary contribution if you want, right? So do check the description. This is a boon for the people who are preparing for civil service examination, and this would be very helpful for you when it comes to the civil services prelims examination 2020. So do check the link and do participate in that. Now moving to the first topic, that is Chabahar Jahedan Rail Project. So this is there in the Hindu, and talking about the relevance of this news, this is very important for your general studies paper 2 where the international relation and strategic management portion are concerned, and it can also be important for the prelims examination. So prelims में map related work जो है उससे डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी काउंटर जवाब दिया है जो कि ईरान की तरफ से पहले ही आई थी. ईरान ने कहा कि वी बी कंटिन्यूइंग विद द छाबहार प्रोजेक्ट अलोन. सो इन दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड कि जो बेसिकली जो रिस्पॉन्स आनी चाहिए थी ईरान गवर्नमेंट की तरफ से वो दिसंबर 2019 के बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं है फ्रॉम द ईरान साइड. एंड द फ्यूचर ऑफ छाबहार जो जहेदन रेल प्रोजेक्ट है that was being on the halt from the Iran side itself. So this is the official communication which has come from government of India. एंड एज यू नो कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़पेपर में थी जहाँ पे ईरान ने कहा है कि ईरान ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि दे वुड प्रोसीड फर्दर without India and the construction of Chabahar Jahedan rail project would be of its own, because उनका कहना है, ईरान गवर्नमेंट का ऐसा क्लेम है कि इंडिया की तरफ से जो फंडिंग है वो अभी तक से स्टार्ट नहीं की गई है एंड दे आर डिलेइंग द प्रोजेक्ट. Now Iran has decided to proceed with the Indian without India's assistance, and they'll be using approximately $400 million from the Iranian National Development Fund, right? So the fund अब जो यूज़ की जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए वो INDF से यूज़ की जाएगी, right? Now this is the map which will help you understand जो connectivity है छाबहार और इंडिया में ईरान के थ्रू. So this is a Chabahar port located this way, and in India it would be connected to खांडाला. बेसिकली खांडला जो पोर्ट है मुंबई में, दिस इज द सी रूट. नाउ दे वर मेकिंग सम बेसिकली द रूट विच वर कमिंग टू द रेल प्रोजेक्ट. सो दिस इज ईरान, दिस इज ओमान, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. दिस इज अरेबियन सी, this is the Pakistan, and this is the Afghanistan region. So map work is again very important. A few questions is directly asked from the map work. Now अगर बात करें छाबहार जाहेदन रेल प्रोजेक्ट की, तो हमारी जो इंडियन वेंचर है आईकॉन, उसने कंप्लीट किया था साइंट इंस्पेक्शन वहाँ पे ईरान में, और 2019 में MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड ईरान, जब प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में वहाँ पे विजिट किया था. सो द फाइनल प्रोजेक्ट वाज साइंड इन 2019, एंड इन दिसंबर 2019 बेसिकली क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट जो कोरस्पॉन्डिंग रेलवे लाइन है दे वर रिव्यूड, और जो डिटेल्ड है वो सारी जो 19th इंडिया ईरान जॉइंट कमीशन मीटिंग में ये फाइनलाइज हो चुकी थी, राइट? एंड इंडिया हैज प्रपोज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.6 बिलियन इन द छाबहार जाहेदन रेल लाइन, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज आउट ऑफ इट और ईरान इज कंटिन्यूइंग themselves alone. देखना होगा whether they are getting some support from other countries and what is the real motive, because India has also not officially rational the motive कि क्यों ये ऐसे हुआ, but they could have continued it. This is the another course of debate. This type of question can be very important when it's come to the interview of your civil services examination.
ना अगर बात करें फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली ये एक गैस फील्ड प्रोजेक्ट थी जिसकी जो पूरी कॉस्ट है दैट इज क्लोज टू $6 billion, और दिस इज अ फायर गैस प्रोजेक्ट. And however, in January 2020 हुआ क्या कि India was informed that it is not the immediate future, and Iran would develop its own, और जो इंडिया की जो अप्रॉक्सीमेटली जो लार्जेस्ट स्टेक है उसको भी बाद में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एंड ईरान वुड कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट अलोन. सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड कि भाई हमें आगे अकेले करके चलना है. तो जो फारजाद बी गैस प्रोजेक्ट है और जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है, दोनों से इंडिया इज ऑफिशियली आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. Now, it is very important for you to understand कि Chabahar port है क्या. तो Chabahar port is located in the Gulf of Oman, and this is only 72 kilometers from the Gwadar port in Pakistan that was developed by the China. So this is the reason you can see Gulf of Oman. Here's the Chabahar port, and this is the Pakistan region. This is the Gwadar port, and this is the India, right? This is the bordered by Iran, and the port is handled by 82 ships and 12 lakh ton of bulk cargoes, and 8200 containers had been assigned in 2018. So it's the biggest port in that region, and it has a huge potential when it's come to the trade and commerce. Now the second topic is border disengagement process. You can find this news in the Hindu. और बात करें इस तरह के न्यूज़ की इम्पोर्टेंस की, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, बट बॉर्डर मैनेजमेंट इज ऑलरेडी मेंशन इन द सिलेबस. सो बॉर्डर इंगेजमेंट को लेकर के काफ़ी टाइम से बात चल रही है आफ्टर द डिस्प्यूट विच हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ द LOC में LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद से जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है दैट स्टिल कंटिन्यूड. और बेसिकली बात की गई है कि एक इंट्रिकेट एंड इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट वेरिफिकेशन. इंट्रिकेट मतलब कि काफ़ी टफ, इट्स नॉट दैट ईजी दैट इट वुड बी हैंडल्ड. तो ये काफ़ी टफ और डेलिकेट प्रोसेस है डिसएंगेजमेंट का, एंड इट वुड टेक फर्दर टाइम टू गेट टू कम्प्लीटली आउट ऑफ इट. बात की गई जो इंडियन आर्मी है और जो चाइनीज़ इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्लीट डिसएंगेजमेंट. जो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट है उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि जो भी जो डिस्प्यूट है दैट शुड नॉट बी अराइजन. एक म्यूचुअल कॉपरेशन हो बिटवीन इंडिया एंड चाइना सो दैट देर इज नो मोर डिस्प्यूट इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जो हमारे विदेश मंत्रालय, दे हैव सेड कि बोथ साइड हैव एग्रीड, और जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो रीडिप्लॉयड टुवर्ड्स द रेगुलर पोस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव साइड इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और आर्मी ने चीज़ों को रिव्यू किया है. दे हैव सेड कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द डिसएंगेजमेंट एंड डिस्कस फर्दर स्टेप टू इंश्योर कि जो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट है वो आने वाले टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में हो जाए. Now the engagement was consistent with the consensus that are reached between the special representative. दोनों तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे. तो इंडिया की तरफ से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको रखा गया था, और चाइना की तरफ से वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है ही वाज देयर इन द disengagement process. Now the next phase of disengagement was complete withdrawal of the forces along the line of actual control. This is in the eastern Ladakh region. So already basically जो चाइना है उन्होंने विड्रॉ किया है. Now the complete disengagement, official disengagement with the declaration has to come within some days. Now the other topic is counterproductive lockdown. This is from the Indian Express, an important editorial which criticized government and its methodology which they have followed during the basically lockdown period. They could have used it very potentially. तो क्रिटिक की गई है गवर्नमेंट के बारे में, एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट इज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर योर एसे पेपर, एंड एट द सेम टाइम दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2. Now the lockdown has exceeded more than a week, but talking about its productivity, it was not that fruitful in the country. See what happened when there is a city-wise lockdown. It provides for time to strengthen the testing and hospital arrangement. So this was the time, the 8 weeks time was there to strengthen our healthcare services. But what has happened? Nothing has happened, not in the terms of infrastructure development, nor adequately thing was strengthened in this 8 week. Then the society we are living has faced a negative consequences because of it. And the lockdown which was there, lockdown के कारण हुआ क्या कि जो प्रिपरेशन टाइम है इन द कंट्री वेयर पीपल हैव लो इनकम एंड स्टेबिलिटी, इसका जो खामियाजा है जो पोस्ट लॉकडाउन के बाद जो शेड्यूल
अनलॉकिंग की गई है, अनलॉक 1.0 और 1.2, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है, बिकॉज जो 8 वीक के टाइम्स में उसमें जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाई है। नाउ मॉडल ऑफ सक्सेस की अगर बात करें तो बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन के टेनॉल क्राइसिस को लेकर के अगर बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपेंशियल ग्रोथ देखी गई थी, बट वहाँ पे भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। ये क्लासिकल केस स्टडी के तौर पे उभरी है। और जो वियतनाम का रिस्पॉन्स है, चाहे वो साउथ कोरिया की एग्जाम्पल है, दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब और उनको काफ़ी अप्रिशिएशन मिली है इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19। और इंडिया में सिर्फ एक स्टेट है जहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, दैट इज केरला। सो केरला हैज़ हैंडल द केस वेरी वेल, इंटायरली केरला हैज़ हैंडल वेरी वेल। और वहाँ जो ग्राफ है दैट इज कम्प्लीटली बॉटम डाउन, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्फ्लुएंजा वर्सेस कोविड-19 जो दर्द है उसको लेकर के एक छोटी सी फिगर है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेट दिया है कि ग्लोबली अगर बात करें तो 1 बिलियन जो लोग हैं दे गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एवरी ईयर, राइट। तो ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के वो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो डेथ का जो रेशियो है वो मोर्टेलिटी जो बेसिकली वो काफ़ी हाई है इसमें। तो सो फार 10 मिलियन पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 अभी तक, लेकिन जो एक्सपर्ट के मारे जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाइयर है कोविड-19 में कंपेयर टू द इन्फ्लुएंजा दैट सीम्स टू बी स्प्रेड मोर ईजली। तो ट्रांसमिशन वैसी वायरली है, बट इसमें जो कोविड की जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू द बेसिकली इन्फ्लुएंजा। ना प्रमोटिंग द बिहेवियर चेंजेस, दैट इज व्हाट हैज़ बीन सजेस्टेड कि जो बिहेवियर चेंजेस है उसको आगे प्रमोट करने की जरूरत है, बिकॉज दिस वुड बी द ओनली वे कि इंडिया इसमें आगे कर पाएगी, राइट। तो बिहेवियर चेंजेस इंटरवेंशन की जो बात की गई है तो सबसे पहले ज़रूरी है वो लोगों को मास्क लगाना, क्योंकि मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था जहाँ पे एक आर्टिकल में ये बात की गई थी कि मास्क इज बिकमिंग ओनली द फैशनेबल थिंग, नॉट अ मैंडेटरी थिंग इन इंडिया, राइट। उसके बाद डिस्टेंसिंग हो गई, हैंड वॉशिंग है, दीज आर द थिंग दैट शुड बी टेकन केयर। और जो सोशल साइंटिस्ट है दे हैव कंफर्म कि जो बिहेवियल चेंजेस हैं दैट रिक्वायर एन इंक्लूसिव अप्रोच, एम्पैथी एंड कॉमन सेंस, सो दीज थिंग्स टू बी हैंडल एंड नो वन वांट टू गेट इन्फेक्टेड। जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से पैंडेमिक है, तो कोई नहीं चाहता है कि दे वुड गेट इन्फेक्टेड। टू रिमेन हेल्दी एवरीवन नीड्स टू स्टे फिट, और विच मीन्स एक्सरसाइज एंड काउंसलिंग टू कोप विद द ट्रॉमेटिक इफेक्ट इन द लॉकडाउन। तो सरकार को कुछ इस तरह से हेल्पलाइन भी लेकर आनी चाहिए जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो काउंसलिंग कर सके लोगों की, चाहे वो 60+ के लोग हैं या फिर उससे कम हो, उन लोगों के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसकी जो मेंटल बैलेंस है वो बनी रहे, राइट। एंड देयर शुड नॉट बी एनी कैंपेन फॉर द बिहेवियर चेंज, देयर शुड बी अ कैंपेन फॉर द बिहेवियर चेंज। अभी तक बेसिकली बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ही ने एड्रेस किया है कुछ एक इस तरह का ऑनलाइन बिहेवियर चेंज थेरेपीज जो कि टेलीविजन में टेलीकास्ट की जाए या फिर यूट्यूब पे डाली जाए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वुड बी सक्सेसफुल। जिस तरह से स्वच्छ भारत कैंपेन को किया गया, यहाँ पे भी बिहेवियर चेंज के लिए काफ़ी कुछ कर सकती है सरकार, राइट। Now the decline in the maternal mortality ratio, this is again good news. Now India has registered a steep decline in the maternal mortality ratio, और अगर मैं डिटेल में बताऊँ इसके बारे में तो दिस अगेन कैन बी important for the prelims examination। जो maternal mortality ratio है in India that has declined from 113 in 2016 16-18 to 122 in basically 2015-16 में इतनी थी, and 133 2014-16 में। तो अभी प्रेजेंट में we are having 130, right? So an almost 100 dead lesser than the year 2007 and 9. So you can see this graph. It was previously in 2012. Now we have reached 113, right? So this figure would be again important for you. This graph is important. Now findings की अगर बात करें, जो रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता दूँ। So the finding were based on the special bulletin on the maternal mortality, that is 16-18, and this was released by the Office of Registrar and Sample Registration System. तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें हायर एमएमआर देखा गया था, जैसे आसाम में 2015, बिहार 149, मध्य प्रदेश 173, छत्तीसगढ़ में 159, उड़ीसा में 150, राजस्थान 160, उत्तर प्रदेश 197 एंड उत्तराखंड वाज 99. So this was for the northern state. So this number is not important, but आप ग्राफ जो क्रोनोलॉजी है कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर है कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे वो आप ज़रूर देख लें। नो सदर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पे लो एमएमआर थी, जैसे आंध्र प्रदेश में 65, तेलंगाना 63, कर्नाटका 92, केरला 43 एंड तमिलनाडु हैज़ 60।
You can see the lesser number in the Kerala because Kerala got some of the very good public healthcare infrastructure and they are more dedicated towards the public health, right? वहाँ पे हॉस्पिटल या बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं. नाउ मैटरनिटी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसके बारे में बात करें, ये होती क्या है. सो दिस इज वन ऑफ द की इंडिकेटर ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी और इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ. जो मैटरनल डेथ होती है पर 1 लाख पे लाइफ बर्थ, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं. और जो टारगेट है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 3.1, उसका एम है टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख बर्थ, राइट. तो इतनी करने की जरूरत है. अभी स्टिल वी आर 113, विल बी वेरी सून मूविंग टू 70 एज वेल. नाउ व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी? मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो इट मेजर्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमेन इन द पर्टिकुलर रीजन. किसी भी एक रीजन पे जो वुमेन की क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कैलकुलेट करते हैं. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, उनके मुताबिक जो मैटरनल डेथ है दैट इज डेथ ऑफ द वुमेन वाइल प्रेग्नेंट विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इस हिसाब से जो मैटरनल मोर्टेलिटी है किसी भी एरिया किसी भी रीजन में कैलकुलेट की जाती है. नाउ द अदर टॉपिक इज लूप होल्स इन द वर्किंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़. जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो लूप होल है उसके बारे में जिक्र है. और दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जहाँ एजुकेशन से रिलेटेड भी सवाल है. और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जहाँ एजुकेशन पॉलिसी या जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. दिस इज़ देयर इन द हिंदू. नाउ इन 20th सेंचुरी जिस तरह से ग्रोथ हुई है नेशनलिज्म, लिबरल एजुकेशन की, और जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफर की गई यूनिवर्सिटीज़ की तरफ में, तो एक करिकुलम ऑफ चेंज और नए जो डिफाइंड गोल है उसके तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत थी. बट कुछ लूप होल्स है दैट स्टिल एग्जिस्टेड इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो ओवर द ईयर दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ ग्रेजुअली डिस्कार्डेड देयर एलिटिस्ट कैरेक्टर एंड हैज़ बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, आने वाले समय में भी यूनिवर्सिटीज़ को और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है ताकि जो कंट्रीब्यूशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी बेसिकली बताया जा सके लोगों को और उसकी जो सही वैल्यू है वो लोगों को समझाई जा सके. नाउ इन द इनिशियल डिकेड्स हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट द वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिनेंशियल चैलेंजेस. तो जो चैलेंजेस थे इन तीनों सेक्टर्स पे, चाहे वो सोशल चैलेंज की बात करें, इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें या फिनेंशियल चैलेंजेस की बात करें, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड कर ली गई थी सरकार की तरफ से. नाउ इट इज स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंस्टीट्यूशन, जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ एपिट जो इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसकी फॉर्मेशन की बात की गई. एंड दे हैव एनकरेज्ड टू डेवलप फर्दर द एकेडमिक रिगरस which would shape the new generation contribution in the nation building. तो ये बात पता थी, ये बात क्लियर थी कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ का होना, एक अच्छे एकेडमिक्स का होना काफ़ी ज़रूरी है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ मॉडल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया की बात करें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIMs है, वो एक डिक्शनरी जो इन्विजन थी, जो एकेडमिक एक्सीलेंस थी, उसके तरफ एक कदम था. उसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ थे, ये इमर्ज हुए एज अ मॉडल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जिन्होंने एकेडमिक इथोस और जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की जो होनी चाहिए, जो पैरामीटर्स होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको इम्पार्ट किया, राइट. एंड द इंस्टीट्यूशनल एंड द एकेडमिक ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सेंटर को, हर इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है ताकि वो इमर्ज कर सके एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया, राइट. नाउ अभी जो प्रेजेंट रिजीम है, जो न्यू रिजीम है फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स, तो देखा यह गया है कि दे आर चेंजेस इन रिफ्यूज ऑफ द न्यू विगरस इंस्टीट्यूशन एकेडमी एंड दे वेर अंडरमाइंड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी. तो गवर्नमेंट ने रिसेंट में बहुत ही ज़्यादा इंटरवीन किया है. अगर मैं 2016 के बाद बताऊं तो गवर्नमेंट हैज़ इंटरवीन इन अ लॉट इन द एपेक्स यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट हो पुणे की, चाहे वो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो दिल्ली में. तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन हुई है. और जो हमारी नेशनल नॉलेज कमीशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही आगे डेलिब्रेट एफर्ट्स दिखाया, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली जो फाउंडेशन कोर्स लाए गए या फिर जो सेमेस्टर सिस्टम लाए गए, उसने कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसको ख़राब किया. नाउ द एकेडमिक कैरेक्टर एंड द डिसीजन वेर इम्पोज्ड अबव एंड डिस्कस विद इन द एकेडमिक बॉडी वेर डिस्करेज्ड.
अगर बात करें सेमेस्टर सिस्टम अक्रॉस द इंडिया एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ 4-year ग्रेजुएट प्रोग्राम, दे वर मेनली बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी लाए गए, प्राइवेट में भी लाए गए. सो दिस वे द हॉलमार्क ऑफ द न्यू एयर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है. तो वी वांट कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, ना कि सेंट्रलाइज किया जाए, राइट. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड यूनिवर्सिटी इमर्ज एज एन एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट. तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बेसिकली चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एक्सलेंस हो, वहाँ ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, ना कि सरकार की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, राइट. बिकॉज ऑफ दे आर द ब्रेन, दे आर द माइंड विच वुड बी कमिंग आउट फॉर द नेशन डेवलपमेंट. So this is what there was in the editorial. Now I would like to tell you that we have started a daily answer writing practice session on dedicated to the टेलीग्राम चैनल. तो अब हर सुबह यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगी और अपने आंसर हमें आप 6 PM तक भेज सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक कर लें. ना बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. कल की जो सवाल है उसके जो आंसर्स है वो मैं आपको बताता हूँ, और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें. Now moving to the first question answer, that is C. The first question के जो आंसर है वो है C. So statement 1 and 2 दोनों करेक्ट है. Ramon Magsaysay Award, that is the highest Asia's honor, and it is awarded annually to individual organization from Asia region that were altruistic and philanthropic services. इन दोनों चीज़ों के लिए दी जाती है, right? And the source of reference is this from the PIB. Now the second question, the correct answer here is C. Basically the correct answer here is B. This is B. And statement 1 is incorrect, that the Pamchana is the second major type of architectural form of the Nagara temple, and the building tend to be the broader and shorter in the Latina one, and the roof is composed of slab and gentle rise in the single point over the centric bending. Now talking about the second statement, this is the correct one. So Pamchana roof do not curve inward, and instead they slope outward on the straight incline, right? So the correct answer here is B. And this is from an introduction to Indian art by NCERT, which is there in the class 11th. Now moving to the today's MCQs. So the first question is from the Indian economy. So these are the statements regarding to the GDP deflator. So you have to tell me which among the following statement is correct. GDP price deflator measures the difference between the real GDP and the nominal GDP, and the nominal GDP include the inflation, while the GDP does not include the inflation. So you have to choose the correct answer, A, B, C or D. So whatever you feel is the correct answer, do participate, write your answer in the comments down below. And moving to the second question, this is from the Indian polity. Consider the following statement with regards to convention related to the appointment of the office of governor. So he should not be to the state where he is appointed, and while appointing the government, the president is not required to consult the chief minister of the state concerned, right? So this is from the Indian polity. So which among the following statement is correct, A, B, C or D? So whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comments down below, and do participate so that we come to know how many of you are participating in the question answer series. So this was the question answer for the day, and if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.